Text number 31. यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं द्रष्टरि द्रष्टव्यम् आरोपितम् अबुद्धिभिः. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Narvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Clouds and dust are carried by the air, but the less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also imply material body conceptions on the spirit self. तो ये एनालॉजी के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जैसे जो क्लाउड और डस्ट है वो हवा के द्वारा कैरी किए जाते हैं, पर जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो स्काई भी क्लाउडी है और जो हवा है वो भी दूषित है. So in this way they implant material body conceptions. What are the conceptions on the spirit self? प्रभु जी, माया का लोभ, लालच, इन सब का हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीजों का. इसलिए हम देख नहीं पाते उसे बियॉन्ड, ऊपर उठ करके. मैं मेरा मोह के वश में, मोह का ये सब कारण है हमारे. Yes. Materialistic designations, the different kind of materialistic consciousness, that is called material body conceptions. Annamaya, pranamaya, manomaya, and all this maya jal is the material body conceptions. Because of that, we are not able to see the spirit soul within. कविता जी आप रीड करेंगे? जी प्रभु जी. Yes. It is further confirmed that therein that with our material eyes and sense we cannot see the Lord, who is all spirit. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living thing. We look to the outward covering of the body or subtle mind of the living being, but we cannot see the spiritual spark within the body. So, we have to accept the living being's presence by the presence of the cross body. Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes or with the material sense are advised to meditate on the gigantic external feature called the Virat Rupa. For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes out in a particular car, we say there is a president. For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent men who want to see God immediately without necessary qualification are shown the first gigantic material cosmos as the form of Lord. Although the Lord is within and without, the clouds in the sky and the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception for the layman only. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is confirmed by this materialistic eyes and senses. We cannot see the Lord, who is all spirit. कौन सा श्लोक है ये पता है आपको? Further confirm herein that with our materialistic eyes and senses we cannot see the Lord, who is all spirit. कौन सा श्लोक है ये?
लोग पता है संस्कृत में? श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एव स्फूर्ति अतः। कि इस मटेरियलिस्टिक सेंसेस से, इस ब्लंट सेंसेस से भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान को देखने का क्या तरीका है? क्या क्या तरीका है? प्रभु जी प्रेम और भक्ति के साथ। प्रभु प्रेमांजना चुरीता होए वो सेवन मुखे ही जीवादो, इसी श्लोक में तो है, सेवन मुखे ही जीवादो। सेवा के थ्रू हम भगवान को देख सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल सेवक्स, वी आर ऑल सर्वेंट्स। सर्वेंट्स तो सेवा करेगा, सेवा करके उसकी प्रमोशन होगी आगे, नहीं तो ऐसी। सो वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body. ना, आत्मा कहाँ पर बैठी हुई है हमें पता नहीं है ना, कितना कितना स्पिरिचुअल सोल है वो हमें पता नहीं है, और कहाँ शरीर में बैठी वो भी हमें कुछ उसका पता नहीं है, नॉलेज कैनॉट डिटेक्ट। वी लुक टू द आउटवर्ड कवरिंग ऑफ द बॉडी और द सटल माइंड, बट वी कैनॉट सी द स्पिरिचुअल स्पार्क विद इन द बॉडी। हम दिख नहीं रही, हम सिर्फ महसूस हो रही है, दिखती नहीं है। So we have to accept the living being's presence by the presence of his gross body. ग्रॉस बॉडी चल रही है, क्यों? क्योंकि आत्मा चल रही है अंदर। अगर आत्मा नहीं चलेगी तो शरीर भी नहीं चलेगा, तो इससे पता चलता है कि आत्मा है अंदर। Similarly, those who want to see the Lord with their present material eyes or with the material senses are advised to meditate on the gigantic external feature called the Virat Roop. For instance, when a particular gentleman goes in his car, can be seen very easily. We identify the car with the man within the car. कार में जा रहा है, कार से पता चलता है वो आदमी है अंदर, कार चल रही है तो मीन्स आदमी है उसके अंदर। When the president goes out in this particular way, we say there is a president. For the time being, we identify the car with the president. Similarly, less intelligent men who want to see the God immediately without necessary qualification are shown first the gigantic material cosmos as the form of the Lord. उनके लिए जो अल्प बुद्धि, उनको पता नहीं है कुछ भी, उनको भगवान का विराट रूप दिखाया, ये है भगवान। तो हाँ ये भगवान है, तब विश्वास होता है ये भगवान है, क्योंकि वो they cannot read the philosophy, they cannot understand the delicate matters. So for them, for grossly foolish people, they have to see the gross form, because beyond gross thing they cannot understand anything. So for them, this gigantic material cosmos as the form of the Lord has to be shown. Although the Lord is within and without. विदिन कैसे हैं और विदाउट कैसे हैं, कौन बताएगा? साक्षी जी आप बताएंगे? हाउ द लॉर्ड इज विदिन एंड विदाउट। और निशा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, साक्षी जी बताइए। लॉर्ड इज विदिन एंड विदाउट, वो तो सर्वव्यापी है, तो विदिन कैसे हैं और विदाउट कैसे हैं वो बताइए। विदिन कैसे हैं? विदिन कैसे हैं? प्रभु जी ये मेरे को ध्यान आ रहा है कि जो बाल का साइज, बाल का बहुत ही कम छोटे से छोटा हिस्सा जो तो होता है, वो तो आत्मा का साइज बता रहे हो। मैं वो लॉर्ड के बाद में, सोल के बाद में, सोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। लॉर्ड इज विदिन, इसका क्या मतलब है? लॉर्ड कहाँ पर है विदिन? हृदय, हृदय के अंदर। हृदय अंदर कौन है? हृदय में
ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिता कहा जाता है। नहीं मैं लॉर्ड कैसे, लॉर्ड विद इन कैसे हैं, किस रूप में है? लॉर्ड विद इन किस रूप में है? हम बताएं। प्रभु जी आत्मा के रूप में है। सुपर सोल, सुपर सोल। सुपर हाँ सोल प्रभु जी, सुपर सोल। तो पहले तो आपने सुनीता जी ने बताया, आपने थोड़ी बताया। परमात्मा रूप में है सुपर सोल। परमात्मा रूप। ओके, और विदाउट कैसे है साक्षी जी? और विदाउट कैसे है? विदाउट तो सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद है वो। नो, कौन बताएगा? किसी को पता है तो हाथ खड़ा करे। विदाउट कैसे है? हाउ द लॉर्ड इज विदाउट? विद इन तो परमात्मा है, विदाउट कैसे है? किसी को पता है? Because he is super soul. सुपर सोल We तो are विद इन just हो गया। we सुपर are सोल, just a drop of a ocean. He's a ocean. ये लॉर्ड इज विद इन है सुपर सोल, और He विदाउट कैसे becomes है? विदाउट प्रभु जी कैसे है? अपने योगम ऐश्वर्यम रूप में। Without he is the spiritual master for everyone, like हाँ, कृष्णा। दिस इज नॉट कृष्णा, प्रभुपाद जी। हाँ प्रभुपाद जी हो गए, व्यास देव हो गए। गुरु, गुरु के रूप में प्रभु जी इसका हाँ, मतलब। गुरु के रूप में। विदाउट मीन्स गुरु। कितनी बारी तो बताया आपको हमने। हाँ जी बताया बहुत बार। विदाउट मीन्स गुरु, विद इन इज परमात्मा। अंदर परमात्मा रूप में विद्यमान है, बाहर गुरु के रूप में विराजमान है। भगवान गुरु के रूप में आ गए हैं, साक्षात धरित्वेना। इसलिए वो गुरु को एम्पावर कर दिया ना, वो भगवान ही है वो, और वो गुरु के फॉर्म में आया हुआ है वो। ओके, सो इन दैट वे ही इज विद इन एंड विदाउट, within and without. The clouds in the sky and the blue of the sky are better appreciated in this connection. Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue. That is a general conception of the layman only. इस तरह ये बताया जा रहा है सारा कुछ। नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर प्रभु 32। जी ये क्लाउड इन द स्काई एंड ब्लू द स्काई, इसका क्या मतलब है? ये भी कोई एक एनालॉजी के थ्रू एक बता रहे हैं, तो I'll check. इसका ये मीनिंग हुआ ना कि जो क्लाउड है वो तो हमारा विदिन हो गया, और जो टेंट ऑफ द स्काई है जो ब्लू कलर है वो विदाउट हो गया। मतलब वो हमारे गुरुओं के अंदर हम नहीं नहीं नहीं, जो दिख रहा है ना हम उसको देख रहे हैं। जैसे एक स्काई में क्लाउड है, जो क्लाउड नहीं है वो, जो नहीं हाँ है उसको हम समझ रहे हैं। हाँ जैसे हम आकाश नीला scarlet नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो नीला है, क्योंकि हाँ इट इज या कवर्ड बाय द ब्लू कलर। और बोलते तो ऐसे ही है ना कि पानी इस पे रिफ्लेक्ट करता है, पानी तो कोई रंग नहीं होता है, तो उसमें स्काई रिफ्लेक्ट करता है इसलिए वो ब्लू लगता है, और पानी भी एक्चुअल में ये जो ब्लूइश टिंट ऑफ द स्काई है और स्काई दोनों डिफरेंट है ना? ऑल द ब्लूइश टिंट ऑफ द स्काई एंड स्काई इटसेल्फ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। वी कंसीव ऑफ द कलर ऑफ द स्काई एज ब्लू। वो हम अपनी भौतिक इंद्रियों से देख रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ हाँ हम मतलब फिजिकल से तो देख रहे हैं कि आकाश नीला है, हाँ लेकिन हाँ वास्तव हाँ में अगर हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखें, आध्यात्मिक स्फुलिंग से देखें, तो वो नीला नहीं है। यस। जब डस्टी तो हम कहते हैं ग्रॉस डस्टी कलर है, को, स्काई इज डस्टी। हाँ यस। दिस प्रभु इज जी द ग्रॉस कलर। ये ग्रॉस बॉडी को जैसे हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को नहीं देखते कि आत्मा के कारण ही ग्रॉस बॉडी का अस्तित्व है। इसी तरह आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम अपनी ग्रॉस आई से देख रहे हैं। यस यस। प्रभु जी एक ये पॉइंट है, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। ये जो बीच में है, सिमिलरली दोज हु वांट टू सी द लॉर्ड विद द प्रेजेंट मटेरियल आईज और विद द मटेरियल सेंसेस आर एडवाइज्ड टू मेडिटेट ऑन जिजांटिक एक्सटर्नल फीचर कॉल्ड द विराट रूपा। एक बार प्रभु जी इसको क्लियर कीजिए जरा। कि जो लोग अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, ग्रॉसली फुलिश हैं, जो ज्यादा फिलॉसफी नहीं समझ सकते हैं,
उनके लिए ये विराट रूप है ना. लेस इंटेलिजेंट पीपल हु वांट टू सी गॉड इमीडिएटली विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तो वो चैंटिंग करता है, ना गीता पढ़ता है, ना उसको कोई ज्ञान पता है, वो भगवान को देखना चाह रहा है. क्या उनके लिए ये फॉर्म है गैगेंटिक मटेरियल कॉस्मोस. वो ये कौन सा टेम्परेरी फॉर्म भगवान ने उनके लिए बनाई है। प्रभु जी विराट रूप का एग्जाम्पल देंगे कौन सा है? अरे भगवान ने हजार यूनिवर्सल फॉर्म जो दिखाया था कुरुक्षेत्र हाँ, में, गीता में जो चैप्टर है यूनिवर्सल फॉर्म, हजार हाथों पांवों, हाँ वही. मैंने बट कहा प्रभु क्लैरिफाई, मेरा मन कंफ्यूज था इसलिए मैंने तो आइडिया तो वही यूनिवर्सल फॉर्म है गैगेंटिक मटेरियल कॉस्मोस. बट प्रभु जी उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि अर्जुन तुम बगैर ट्रांसेंडेंटल आईज के मुझे नहीं देख सकते हो, और उन्होंने उनको अर्जुन को जो डिवोशनल सर्विस में ओतप्रोत है उनको चक्षु दिए थे स्पेशल विराट रूप देखने के लिए. तो हम ये सिमिली जो है ना कि भाई जो अनइंटेलिजेंट होते हैं या मूढ़ा लोग होते हैं उनको भगवान विराट रूप दिखाते हैं, मुझे ऐसा अंदर दिखाते से नहीं है, लगता है ध्यान दिखाते करने के लिए नहीं है, बोल रहा है. उनके लिए बताया गया है। उनके लिए विराट रूप मतलब कैसे होगा, मतलब मेरा गलती भी हो सकती Actually, this Virat Roop Bindu Mataji it's a like a imaginary form or a materialistic form or a temporary form. This is not a factual form. This is not a permanent form. This is a materialistic form of the Lord. तो लेकिन विराट रूप तो हम यूनिवर्सल फॉर्म के लिए यूज करते हैं ना, जो गीता से इमर्ज हो रहा है. गीता में ही लिखा हुआ है ये. प्रभु जी भगवान ने अर्जुन को तब दिखाया था कि अच्छा देख मैं तुझे ये बताता हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो अब तू ये देखेगा तो मानेगा. तभी जैसे अर्जुन एकदम नतमस्तक हुआ कि हाँ भाई ये साक्षात हरि है. तो उन्होंने उसको अपने भक्त को दर्शन दिए थे, और उसमें सिर्फ 3 लोगों ने दर्शन किए थे, जिसमें संजय था जिनको ये नॉलेज मिली थी, एंड व्यास देव जी. तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि आम आदमी कैसे विराट रूप, जो एथिस्ट है वो तो विराट रूप वैसे भी नहीं मानेगा, लेस इंटेलिजेंट पीपल तो वो तो एक्चुअल में इसमें जो जो विराट रूप है इसमें भगवान की ग्रेटनेस बताई हुई है, और भगवान का जो भव्य शक्तियां हैं वो बताई हुई है. क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं उनको तो ज्ञान तो है नहीं है, बट भगवान का जब भव्य दर्शन कर लेंगे इतना ज्यादा तो उनकी बुद्धि में अकल आएगी कि हाँ ये तो बहुत बड़ा. सारे सब डेमी गॉड जो है वो सब एक ही हैं, सभी अरे भगवान के 30 अंदर करोड़ है. देवते इसमें ही है, ये अनल वायु आकाश इसमें ही है, इंद्र चंद्र वरुण इसमें ही है, सारी पृथ्वी इसमें समाई हुई है. जब वो ऐसा देखेगा कि सारा कुछ इसके अंदर ही है तो उसकी बुद्धि खुलेगी और वो देख पाएगा. दैट्स व्हाई इज फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल. जो मोर इंटेलिजेंट है वो तो फिलोसफी समझ रहे हैं, दे आर रीडिंग गीता भागवत, तो सुनने से समझ में आ रहा है. और जो प्रभु लेस जी उनको इंटेलिजेंट केवल है, राष्ट्रपति की कार दिखाई जाती है कि वो देखो कार जा रही है और वो देखो उसमें राष्ट्रपति है, लेकिन वो राष्ट्रपति के दर्शन नहीं कर पाते हैं. हाँ राष्ट्रपति के दर्शन करने के लिए तो अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी ना. हाँ. So in like that. So this is for the less intelligent people. है मतलब ना. देयर इज अ डिफरेंस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ना, वही डिफरेंस हुआ इसमें. हाँ तो हमें पता है भगवान की ग्रेटनेस, तभी हम ये नॉलेज पढ़ के भगवान को और समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमें भगवान की ऑथेंटिसिटी पे, उनकी पोजीशन पे कोई डाउट नहीं है. लेस इंटेलिजेंट पीपल दे हैव द डाउट ऑन द लॉर्ड. So that's why the Lord is saying, oh, see, if you have doubt, see me. See my universal form and satisfy yourself. प्रभु जी अगर मैं कहूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं लेस इंटेलिजेंट हूँ और मुझे विराट रूप देखना प्रभु का, मैं कुछ नहीं मानती हूँ, मैं एक सोचूं मुझे डिवोशन नहीं करना, मुझे किताब नहीं पढ़नी, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे प्रभु का ऐसे विराट रूप नहीं है. तो उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना ना. अच्छा ठीक है प्रभु जी, पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन फुलिश पढ़. क्वेश्चंस हैं बट दिमाग में आते हैं कई बार, जैसे सुनीता जी ने पूछा. प्रभु जी थोड़े कंफ्यूजन है इसके अंदर ना, क्योंकि विराट रूप एक भव्य रूप है भगवान का, जो सिर्फ भक्त ही देख सकते हैं, और इसमें बड़ा दिस इज फॉर द लेस इंटेलिजेंट पीपल. ये जो डिवोटी लोग हैं वो ये इसलिए अर्जुन भी जो था वो संशय में उसको दिखाया, और जब उसने देखा तो वो मुझे नहीं देखना, मुझे तो आपका वो श्याम सुंदर रूप ही देखना है. तो उसने देख लिया तो इतना घबरा गया, इतना डर गया वो, आई डोंट वांट टू सी दिस घास्टली फॉर्म.
दिस फीयरफुल फॉर्म, प्लीज मुझे अपना श्याम सुंदर फॉर्म में दिखाइए, मुझे उसमें ही खुशी मिलती है। आई डोंट वांट टू सी दिस फॉर्म। प्रभु जी ऐसे थोड़ी कोई भी कह देगा कि क्या कहते हैं हम दर्शन करना चाहते हैं तो वो भगवान दिखा देंगे बार बार। उसके लिए भी बहुत आगे तक स्पिरिचुअल लेवल पे जाना पड़ता है, अर्जुन की तरह। केवल हम ध्यान कर सकते हैं, देख नहीं सकते उनके उस रूप को। Yes, so this is the thing actually. Okay, so we'll go to the next verse. 32 अतः परम यद अव्यक्तम आयुद्ध गुण भ्रमितम अदृष्टाश्रुता वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः. Translation and purport by Srila Prabhupada. Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifest. The living being has his form beyond this subtlety. Otherwise, he could not have repeated births. तो ये ग्रॉस कंसेप्शन जो है फॉर्म का, है ना, उससे हटके एक सटल कंसेप्शन है, एक स्थूल रूप है, उससे ऊपर एक सूक्ष्म रूप है ना, जिसमें कोई शेप नहीं है, जो अनसीन, अनहर्ड, अनमैनिफेस्टेड है। और जो जीवात्मा है वो इस सूक्ष्म से भी परे है ना। अदरवाइज ही कुड नॉट हैव रिपीटेड बर्थ्स। तो पहले ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी है, और सटल बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल बॉडी है। So it is like that. So you can read, Kavita ji. Hare Krishna Prabhuji. As the gross cosmic manifestation is conceived as the gigantic body of the Lord, so also there is a conception of his subtle form, which is simply realized without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or the subtle conception of body are in relation with the living beings. The living beings has his spiritual form beyond this gross material or subtle psychic existence. The gross body and the psychic function cease to act as soon as the living being leaves the visible gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen and unheard. Even when the gross body is not acting, when the living being is a sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. So, the living being passing away from the body does not mean that there is no existence of living soul in there. Otherwise, how can we repeat the birth again and again? The conclusion is that Lord is externally existent in his transcendental form, which is Eternally. neither gross or subtle like that of a living being. His body is never to be compared to the gross or the subtle bodies of the living being. All such conception of God's body are imaginary. The living beings has his external spiritual form, Eternal. which is, It's sorry, called eternal. eternal spiritual form, which is conditioned only by the material contamination. Hare Krishna. Hare Krishna. So as a gross cosmic manifestation is conceived as a gigantic body, so also there is a conception of his subtle form. First is a gross form and a subtle form, which is simply realized without being seen. So gross form has how many elements? 24 elements. 24. Gross form has how many elements? 24. 24 elements. And subtle? सटल ये मन बुद्धि अहंकार 3. तो इसके वो तो 24 के अंदर ही आ जाता है ना वो। हाँ जी. Three modes of material, Prabhuji. Gross elements are 5. 5 subtle, 5 sense. No, gross elements are earth, water. Fire, air, ether. 5 are gross, 3 are subtle. Yes, man, buddhi, ahankar. Yes, subtle. Okay, so 5 are gross, 3 are subtle.
without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or subtle conceptions of body are in relation with the living beings. The living being has a spiritual form, not this gross or subtle. तो आत्मा जो है स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो क्या चीज छूटती है उस समय? आत्मा निकल जाती है। आत्मा ही छूटती है प्रभु जी। शरीर छूटता है। आत्मा के साथ एक और चीज जाती है साथ में, सटल सूक्ष्म शरीर। हाँ। तो आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर ना कवर करके रखता है। सिर्फ ग्रॉस बॉडी छूटती है, आत्मा के साथ सटल बॉडी दूसरी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि आपका जो मन और बुद्धि और अहंकार है वो कंटिन्यू रहता है। आपका मन कैसा है, बुद्धि कैसी है, अहंकार है, वो आगे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये सिस्टम होता है। ग्रॉस बॉडी एंड साइकिक फंक्शन स्टॉप टू एक्ट as soon as the living beings leaves the body. तो सारा फंक्शन करना बंद हो जाता है पूरा स्थूल शरीर। In fact, we say the living being has gone away because it's unseen and unheard. दिखता तो है नहीं है, आत्मा दिखती न सुनती है। Even when the gross body is not acting, when the living being is in sound sleep, know that he is within the body by his breathing. So the living being is passing away from the body does not mean there is no existence of the living being. जब मृत्यु होती है तब आत्मा की मृत्यु नहीं होती है उस समय। जब हमारी मृत्यु हो रही है, आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है, आत्मा तो सिर्फ ट्रांसफर हो रही है। It is there, how otherwise how he can repeat his birth again and again? प्रभु जी ऐसे बोलते हैं ना, जैसे किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, इसका क्या मतलब है? आप अभी कहा ना आत्मा तो मन बुद्धि अहंकार से परे है, तो फिर ये जो दुख लगता है वो मतलब किसको लगता है फिर? ये किसी को आत्मा को दुख आत्मा नहीं तो देना दुखी चाहिए, सुखी मतलब नहीं किसी को होती। कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को सफरिंग हाँ, नहीं तो देना। आत्मा को टच हो रहा है ना, हर्ट होता है ना। हाँ, एक्सपीरियंस हो रहा है। यस, क्योंकि आत्मा अभी कंडीशनड स्टेज में है, बद्ध अवस्था में है, इसलिए अच्छा, अगर मुक्त अवस्था में होगी तो कोई कोई कुछ नहीं लगेगा उसको, बिकॉज इट इज इन कंडीशन स्टेज, कंडीशन बाय 3 मोड्स ऑफ नेचर। दैट इज द रीजन। आत्मा अगर बद्ध अवस्था में है तो दुखी सुखी हो रही है, अगर मुक्त सुख आत्मा है तो दुखी सुखी नहीं होगी, है सुख ना। दुख से ऊपर हो जाएगी, ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी। प्रभु जी मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितना शरीर में ज्यादा हम रहते उससे एक मिनट, एक एक शरीर करके, हाँ, में अनुकूल। रहते हुए आत्मा मुक्त अवस्था में रह सकती है, दैट इज यस सच्चिदानंद ना। यस, शरीर में रहते हुए ही आत्मा मुक्त। हाँ, अच्छा वो प्रभुपाद जी है ना, शरीर में रहते हुए मुक्त अवस्था में है। अच्छा अच्छा। हाँ, शरीर में रहते हुए ही प्रभु जी लिबरेटेड जितना सोल है। हम ज्यादा बाउंडेड रहेंगे ना इस बॉडी से, उतना ही ज्यादा कष्ट जो है हमें महसूस होता है। और जब इसलिए हम ये सोच बॉडी, लेंगे कि नहीं ये शरीर अलग है और हम अलग हैं, तो वो शरीर के जो कष्ट हैं वो थोड़ा सा कम लगने लगते हैं इसलिए जब आप ज्ञान भक्ति से। कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तब आप डिटैच्ड हो रहे हो। डिटैचमेंट हो जाता है। बॉडी और बॉडी के रिलेशन से विरक्ति आती जा रही है ना, क्योंकि हमें आसक्ति थोड़ी करनी है इन चीजों से, हमें विरक्ति करके कृष्ण से आसक्ति करनी है। दैट इज अवर प्रमोशन, दैट इज अवर एडवांसमेंट। डोंट हैव टू अटैच विद दिस वर्ल्ड। इस जेल के साथ अटैचमेंट नहीं रखना है, इससे डिटैचमेंट करना है धीरे धीरे। The conclusion is that the Lord is eternally existent in his transcendental form, which is neither gross nor subtle. तो भगवान इस सूक्ष्म स्थूल से परे, भगवान दिव्य है ना, वासुदेव स्टेट में। His body is never compared to the gross subtle bodies. All such conception of God body are imaginary. तो सारा imaginary है ये। भगवान के लिए सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, भगवान को ग्रॉस सटल से परे है। The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. तो हमारी भी भगवान जैसे शरीर है हमारा, बट इस समय हम बंधे हुए हैं, 3 गुणों ने हमें बांधा हुआ है, इसके कारण हम शरीर चेंज करते जा रहे हैं। बट एक्चुअल में हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी, वो अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू भक्ति, थ्रू सेवा। वी आर ट्राइंग टू अवेकन अवर स्पिरिचुअल बॉडी। भक्ति करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे,
तो ये मटेरियलिस्टिक बॉडी डिसॉल्व होकर स्पिरिचुअल बॉडी अवेकन हो जाएगी. दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. We'll go to the next verse, text number 33. ठंड लगती पई है. यत्रे मे सद असद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम. Translation and purport by Srila Prabhupada. Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. तो जब वो पर्सन एक्सपीरियंस करता है आत्म साक्षात्कार से कि ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, जब ऐसा उसको साक्षात्कार हो जाता है, जब ये रियलाइजेशन हो जाती है कि दो तरह की नॉलेज होती है. कौन कौन सी नॉलेज होती है? दो तरह की. अंजलि जी. दो तरह की कौन सी नॉलेज होती है? किसी को पता है तो बताइए. नॉलेज प्रभु जी, ट्रांसडेंटल नॉलेज, स्पिरिचुअल नहीं नहीं इसका दो वर्ड थे, ये इसी में ही है ना. हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए. प्रभु जी, कौन बोल रहा है? जब कोई मनुष्य अपने आप को और परमात्मा को दोनों को अच्छी तरह से जान जाता है, ये क्या सटल बॉडी और क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, तभी वो परमात्मा को देख पाता है. यानी मेरा क्वेश्चन है दो तरह की नॉलेज कौन सी होती है, ये हमारा क्वेश्चन है. एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज, ओके, और दूसरी दूसरी जो मटेरियल हो गया. मटेरियलिस्टिक लोग जो करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ये नहीं. स्पिरिचुअल नॉलेज के दो बाइफर्केशन है, ये बताइए. देयर आर टू काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. सेल्फ रियलाइजेशन प्रभु जी. एक तो प्रभु सिर्फ वेदों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो हुआ, प्रभु जी मैं बताऊं, और एक भक्ति से जो कर रहे हैं वो हुआ. देयर आर टू काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रभु जी मैं बताऊं. बताइए बताइए प्रभु जी. प्रभु जी, पहली नॉलेज तो ये कि मैं जो हूँ भगवान का पूर्ण मतलब अंश हूँ, और मैं जो हूँ मतलब ये अपने अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना, कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. पहली बात तो यह. दूसरा, अपने स्वरूप का कि मैं प्रभु का नित्य दास हूँ. मेरा स्वरूप जो है वो नित्य दास है, मैं भगवान का सेवक हूँ. मैं इस संसार में मतलब वो मेरा और कोई काम नहीं है, सेवा करने का काम है. यदि ये दोनों नॉलेज हो जाती है अपने स्वरूप की और अपने भगवान का अंश होने की, दोनों नॉलेज हो जाए, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है. तो इसमें क्या है, दो तरह की नॉलेज जो है. पहली नॉलेज जो है वो बुकिश नॉलेज बोलते हैं उसको. बुकिश मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज. जो हम ये जो कर रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज है ना. हम बुक्स पढ़ के इसको समझ रहे हैं, दिस इज ए थ्योरी, हम इसको गेन कर रहे हैं. इसको बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज बोल रहे हैं. बट अगर हम इस नॉलेज को हम मेडिटेट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और इसका मनन करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये वाली नॉलेज, ये सेम बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज रियलाइज्ड नॉलेज बन जाएगी. यही सारा ज्ञान जो है इसका साक्षात्कार हो जाएगा. इस ज्ञान का रियलाइज्ड नॉलेज है ना. वो वैसे ही हुआ ना, जैसे बोलते हैं रसगुल्ला मीठा है, तो जानते हैं मीठा, लेकिन जब उसको खाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना प्रभु जी, प्रैक्टिकल नॉलेज. रियलाइज नॉलेज और एक बुकिश नॉलेज. हाँ, ज्ञान है कि हाँ रसगुल्ला मीठा है. अभी तो सिर्फ पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है. दिस इज कॉल्ड या एग्जैक्टली. बुकिश नॉलेज. बॉडी नहीं है, सोल है, बुकिश. बट ये कब इसका रियलाइजेशन आएगा हमको, है ना. तो ये फर्स्ट जो ट्रांसलेशन में वही बात हो रही है. मैंने पर्सन एक्सपीरियंस बाय सेल्फ रियलाइजेशन, जो वो रियलाइज कर चुका है, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, रियलाइजेशन हो गई है ना, कि ये ग्रॉस और सटल का कोई आत्मा से कोई लेना देना नहीं है. जब ऐसा उसको रियलाइजेशन हो गया है, एट दैट टाइम ही सी हिमसेल्फ एज वेल एज द लॉर्ड. तो खुद को भी देख रहा है, भगवान को भी देख रहा है. ओके, प्लीज रीड कविता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी.
The difference between self-realization and the material illusion is to know the temporary or the illusory imposition of material energy in the shape of gross or subtle bodies are superficial covering of the self. The covering take place due to ignorance. Such coverings are never effective in the person of the personality of Godheads. Knowing his convincingly is called liberation or seeing the absolute. This means that the perfect self-realization is made possible by absorption of godly or spiritual Option. life. Sorry, Adoption. adoption of godly or spiritual life. Self-realization means becoming the indifferent to the needs of the gross or subtle bodies and becoming serious about activities of the self. The impetus for activities is generated from the self, but such activity become illusionary due to ignorance of the real position of the self. By ignorance, self-interest is calculated in terms of gross or subtle bodies, and therefore a whole set of activity is spoiled life after life. When, however, one meet the self by the proper culture, the activities of self begin. Therefore, a man who is engaged in the activity of self is called Jiva Mukta or liberated person even in the conditioned existence. Hare Krishna Prabhuji. So there is a difference between the Atma Sakshatkar and the Maya. Kya difference is to know the temporary or illusory imposition of energy in the shape of gross are superficial coverings of the self. तो ये जो materialistic energy है, temporary है, they are like a superficial coverings of the self. The coverings take place due to ignorance. These are the illusory impositions, temporary coverings, superficial coverings. Because of andhakar, because of agyan, because of ignorance, these coverings are coming. They are never effective in the person of the personality of God. जो कृष्ण भक्त बन गया है, उनके केस में ये कवरिंग्स काम में नहीं आती. तो इसको जो इसमें जो कन्विक्शन जिसको आ गई है, जो कन्विंस हो गया है, वो मुक्त आत्मा है और वो भगवान का दर्शन कर रहा है. तो ऐसा दर्शन जो है, ऐसा आत्म साक्षात्कार सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही पॉसिबल है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. Only by godly life, spiritual life, you can achieve this kind of liberated stage. तो इसका क्या मतलब है? Becoming indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and become serious about the activities of the. तो धीरे धीरे हमारी materialistic life कम होती जाएगी और हमारी spiritual life बढ़ती जाएगी. That is the procedure of self-realization. प्रभु जी किस चीज के लिए कन्विंस हो गया है वो कि भगवान है, भगवान यस, भगवान की जो कॉन्शियसनेस है, भगवान की जो पोजीशन है और ये माया की जो आर्टिफिशियलनेस है, इसमें कन्विंस हो गया है वो कवरिंग में. माया और भगवान की जो बॉडी की जो कवरिंग है टेम्परेरी है, इसमें कन्विंस हो गया वो. हाँ. प्रभु जी इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने शरीर के लिए करते हैं, ना कि आत्मा की भूख को शांत करने के लिए. हाँ, यही तो आपने बताया था ना कि हम शरीर को ही पोषित करते रहते हैं, शरीर को ही मतलब फीड करते रहते हैं कि ये सुंदर बने, ये बने, लेकिन हम आत्मा के पोषण की कभी बात नहीं करते. तो एवरी डे माय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज शुड इंक्रीज and my material activities should decrease. That is a sign of advancement. This is a sign of advancement. That's why on Ekadashi day we increase the spiritual activities and we decrease the material activities. आत्मा के कार्य नहीं करते हैं ना हम लोग. तो इसलिए the impetus for activities generated from the self, but such activities become illusory. है ना, ये illusion लगता है क्योंकि हम अंधकार में हैं, हमें अपने बारे में पता ही नहीं हम कौन है, भगवान का कुछ पता ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है और फंसे हुए हैं इस जीवन में. तो दैट इज द इग्नोरेंस ऑफ द सेल्फ.
So by ignorance, self-interest is calculated in terms of gross and subtle bodies. बस मैं और मेरा, this gross and subtle, और है ना, ग्रॉस बॉडी में और मन बुद्धि अहंकार में ही पूरा जीवन इसमें ही बिता दिया हमने साथ। मेरा माइंड ये कर रहा है, मेरी बुद्धि ये कर रही है, और ईगो है बहुत ज्यादा, और बॉडी है, बस इसमें ही पूरा जीवन मेरा लग गया, बॉडी में ही पूरा जीवन बॉडी में लग गया। And therefore a whole set of activities is spoiled, life after life. और ऐसे इग्नोरेंट में मैं मिलियंस ऑफ लाइफ इग्नोरेंस में बिता दिया मैंने। Millions of precious lives I have spoiled in the ignorance, life after life. When however one meets the self by the proper culture, the activities of self begin. अभी हम प्रभुपाद के टच में आ गए, है ना? प्रभुपाद जी के टच में आने से the activities of the self begin. आत्मा की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। The man who is engaged in the activity of self is called जीवन मुक्ता, or the liberated person even in the conditional existence. जो आत्मा की एक्टिविटीज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? जीवन मुक्त। हाँ, जो आत्मा की एक्टिविटीज कर रहा है, जिसका चैंटिंग में इंटरेस्ट है, जिसका रीडिंग में इंटरेस्ट है, जो लेक्चर सुन रहा है, जो भोग लगा रहा है, जो आरती कर रहा है, जो प्रचार प्रीचिंग में प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों को डिवोटी बना रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है इन सारी एक्टिविटीज में, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ता ना। और जो पूरा संसारिक में ही लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, बॉडी और बॉडी के रिलेशन में लगा हुआ है, इज बद्ध जीव, बद्धात्मा। ओके, तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज वारादेव जी का अपीयरेंस डे है, जब हिरण्यक्ष राक्षस था, उसने पूरी धरती को डुबाने की कोशिश की थी, तो भगवान ने अपने टस्क पे पूरी धरती को उठा के उस धरती को बचाया था। तो वो आज का दिन है, दैट इज टुडे, वरादेव जी से प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि हमें भी भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ाएं। यस प्रभु जी, अंजलि को बोलना ये सेशन जो हो रहे हैं वो यूट्यूब में वो जो करते हैं वो कर दीजिए। दिल्ली माता जी यूट्यूब में सेशन डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, आज कर दूंगी।